Praise the Lord, dear brothers. सभी को जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। We praise God for the wonderful privilege God has given us once again to come to His feet and listen to His word and to have fellowship with one another. परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं इस सौभाग्य के लिए जो प्रभु ने दिया कि हम उनके चरणों के पास आ सकें और एक दूसरे के साथ हम एक बैठक रख सकें। Hope you're all doing good. आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे हैं। Thank you very much for your prayers. आप सभी की प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं। Please continue to pray हमारे लिए लगातार प्रार्थना करें so that we may be able to serve the Lord faithfully till the last breath of our life. ताकि हम अंतिम सांस तक परमेश्वर की विश्वास योग्यता के साथ सेवा कर सकें And we may be able to serve you the way you need according to the situation, according to the requirement. और जैसा कि इस समय की जरूरत है, जैसा कि परिस्थितियां हैं, उसी प्रकार हमारा व्यवहार हो सके। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Precious Lord, we humbly submit once again ourselves at your feet. परमेश्वर एक बार फिर से हम नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। We beg you that to speak to us and reveal yourself unto us afresh and open our eyes of understanding. पिता परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, हमारी आंखों को खोलिए, हमारी समझ को खोलिए। We pray that our attention, our concentration may be upon you and upon you alone. May there be nothing which can distract us from you. पिता परमेश्वर हमें आशीष दीजिए ताकि हमारा ध्यान आपकी ओर एकाग्रचित हो सके और हमारा ध्यान इधर-उधर ना भटके। We submit and surrender ourselves unto the leading and guidance of the Holy Spirit, both to me and to my brother. Translation. और प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और अंकल को भी, साथ ही हमें अनुवाद करने में परमेश्वर पवित्र आत्मा सहायता करे। Whoever is listening to your word, we pray that Lord, enable our dear brother or sister be blessed so that the word may be practiced in a personal and practical life. हम प्रार्थना करते हैं कि जितने प्रिय भाई बहन ये वचन सुनते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन व व्यवहार में ये वचन कार्य करे। In Jesus' most precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में ये प्रार्थना मांग लेते हैं। So today we are going to study the book of Isaiah. आज हम यशायाह की किताब को हम अध्ययन करेंगे। So remember, in the days past, we have studied Obadiah and then Joel and then Jonah and then Amos, Hosea. All these 5 prophets we have already studied. और पिछले क्लासेस में हमने ओबेदिय्याह भविष्यवक्ता, योएल भविष्यवक्ता, योना भविष्यवक्ता, आमोस और होशे नबी की हम किताबों को हम पढ़ चुके हैं। So next in the priority or the chronological sense, we find the book of Isaiah. और इसके बाद जो हम एक मुख्य भविष्यवक्ता जिसको हम पढ़ेंगे वो यशायाह है और इतिहास के क्रम में हम उनको आगे देखते हैं। So Isaiah, he served the people of God maybe from 782 BC to 680 BC. He served among the people of Judah. और यशायाह भविष्यवक्ता का जो भविष्यवाणी काल है वो 700 ईसा पूर्व से 680 ईसा पूर्व तक है और उन्होंने यहूदा के लिए भविष्यवाणी की है। The book of Isaiah chapter 1 says he served among when 4 kings were ruled. और जैसे कि यशायाह पहले अध्याय में लिखा है कि यशायाह जब सेवकाई की उस समय 4 राजा जो है शासन कर रहे थे। Chapter 1 and verse 1. The vision of Isaiah the son of Amos, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. आमोस यशायाह की किताब 1 अध्याय का 1 वचन। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में
उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। So, if you remember, uh, earlier we have seen both the southern kings and the northern kings. और जैसा कि हमने पिछले अध्ययन में विभाजित जो राष्ट्र थे उसमें से दक्षिणी राष्ट्र और उत्तरी राष्ट्र को पढ़ा था। When Isaiah was serving during the reign of Uzziah, there were few kings ruling in the northern side: Jeroboam II, Zechariah, Shallum, Menahem, Pekahiah, and Pekah. और जब दक्षिणी राष्ट्र में यशायाह भविष्यवाणी कर रहे थे हिजकिय्याह के राज्यकाल में, उसी समय दक्षिणी उत्तरी राष्ट्र में जो राजा थे वो थे यरोबियाम, जकरिया, शालूम, मनहेम, पेकहयाह और पेकह राजा। Although he was specifically focusing his ministry among the people of Judah, in those days, even those literature were also shared among the other part of the kingdom, whoever is available, whoever was interested to go through. और यशायाह ने मुख्य रूप से यहूदा के लिए भविष्यवाणी की है, परंतु उस समय और भी जो इसके संपर्क में आए थे उन तक भी यशायाह ने सेवकाई और की है और उनकी बातें पहुंची है। So we have already seen the divided kingdom in detail. So thereby we should remember that the king Uzziah was a good king and King Jotham was also a good king. But whereas the king Ahaz, the son of Jotham, was a wicked king. But surprisingly, Hezekiah, the son of Ahaz, is a very good king. और जैसा कि हमने दक्षिणी राष्ट्र में राजाओं का अध्ययन किया था, हमने देखा था कि उज्जियाह राजा और योताम जो राजा है वो बहुत ही अच्छे राजा थे, परंतु जो योताम का पुत्र आहाज था वो बहुत ही दुष्ट राजा था। परंतु हम आश्चर्य रूप से देखते हैं कि आहाज का पुत्र जो हिजकिय्याह था, वो एक अच्छा राजा था। So in Hebrew, the Isaiah is pronounced as Yashayahu. और यशायाह को अगर हम इब्रानी भाषा में अध्ययन करें, तो उसको हम व्हाट दैट प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग अंकल? Ye- Ye- Yeshayahu. That is in Hebrew pronunciation. Yeshayahu. अगर हम इब्रानी भाषा में यशायाह का जो उच्चारण को देखें, तो हम उसे यशायाहू कहते हैं। Means Yahweh is salvation. उसका मतलब है कि यहोवा ही उद्धार है। So the etymology, the Yahweh has become Lord. Now we say, Lord is my salvation. और चूँकि हमने जानते हैं कि यहोवा को अब प्रभु के नाम से उसमें बताया गया है, इसलिए हम यहाँ लिखा है प्रभु मेरा उद्धार है। So if I have to introduce Prophet Isaiah, Isaiah was from a royal family. And so he has an influence to get into the king's palaces and influence the royal uh, kings of Judah. और यशायाह जो है वो एक राजकीय परिवार से संबंध रखते थे और वो राजकीय परिवार से थे, इसलिए उनका जो प्रभाव है वो पूरे राजकीय घराने पर था और इसलिए यशायाह एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। So in his prophecies, Isaiah says that his wife was also a prophetess. It appears as if his ministry is a family ministry. और यशायाह की जो पत्नी थी वो भी एक भविष्यवक्ता थी और उनकी जो सेवकाई है वो मुख्य रूप से परिवार के भीतर में सेवा थी उनकी। So God blessed them with two children, two sons, and God told them what name they should be named. और यशायाह को परमेश्वर ने 2 पुत्र दिए थे और ये भी बताया था कि उनके दोनों पुत्रों का क्या नाम रखना है। We find in Isaiah chapter 7, verse 3, the elder son's name is Shear Jashub, means the rest will return. और जैसे कि यशायाह 7 अध्याय के 3 में ही उन्होंने अपने पुत्र का नाम शायासूब रखा। इसका मतलब है कि जो बचे हुए हैं वे वापस आएँगे। And the second son's name is Maher Shalal Hashbaz, means rushing to booty. व्हाट दैट मीनिंग अंकल? Rushing to booty means spoil, when kings attacks his enemy, when enemy is defeated,
and whatever is the spoil, they'll boot and get it back. Spoil means, they attack ओके। whatever the तो property, they find the valuable property, they boot it. यस अंकल। Yeah. और वो जो यशायाह के दूसरे पुत्र थे उनका नाम जो यशायाह 8 अध्याय उसके 3 में लिखा है महेरशाला शाल सबज। इसका मतलब है कि दूसरों के राज्य से लूट लेकर आने वाला व्यक्ति। So here what I understand is the ministry is a family ministry. It's not an individual ministry. तो यशायाह की हम सेवकाई को देखते हैं, इनका व्यक्तिगत सेवकाई नहीं था परंतु ये पूरे परिवार इनकी सेवकाई कर रहे थे। Blessed is the family where the servant's wife, a mistress, able to catch the vision what God has given to her husband. और वो परिवार बहुत ही आशीषित होता है जिस परिवार में परिवार की पत्नी को वो दर्शन जो उनके पति को मिला होता है, वही दर्शन की समझ उनकी पत्नी को भी होता है, ऐसा परिवार धन्य होता है। Blessed is the family where even the children's names are definitely named according to the guidance of God Himself. और वो परिवार भी धन्य और आशीषित होता है, जिस परिवार में बच्चों का नाम परमेश्वर की अगुवाई से रखा जाता है। If you please turn with me to Isaiah chapter 8 and verse 18, Isaiah himself says while doing his ministry, such a wonderful verse, Isaiah chapter 8 and verse 18. I will read it for you. Here am I and the children whom the Lord has given me. We are for signs and wonders in Israel from the Lord of hosts who dwell in the Mount Zion. और यशायाह 8 के 18 में लिखा है, देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार हैं। Blessed is the family who understands that they serve the Lord as a family and people around them are watching them. And this family is witnessing to the people around them. और धन्य है वो परिवार जो परमेश्वर की सेवा करते हैं और परमेश्वर के गवाह बनते हैं और साथ ही उनके परिवार में आश्चर्य कर्म होता है और आसपास के जितने लोग होते हैं, वो उनके परिवार में उस आश्चर्य कर्म को होते हुए देखते हैं, वो परिवार धन्य होते हैं। So let me give you little more details how to achieve, rather how to have this kind of blessed family. तो हम कुछ अध्ययन करेंगे कि इस प्रकार के आशीषित परिवार कैसे होते हैं। So this is my understanding as I've been walking with God for 40 plus years. और ये मेरा अनुभव है जो मैंने लगभग जो सेवकाई में 40 साल का समय बिताया है, उसका कुछ अनुभव मेरे साथ में है। And God also given me burden to serve among the families, and so I'm trying to present you what I understood to have such a blessed family. There are certain definite conditions. और चूँकि परिवारों के बीच में परमेश्वर ने मुझे सेवकाई का सौभाग्य दिया था, इसलिए मैं आपको कुछ बातें बता सकता हूँ कि कौन-कौन से परिवार हैं जो आशीषित होते हैं। So Bible categorically says in 2 Corinthians chapter 6, a believer and unbeliever cannot share the yoke. और जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि विश्वासी और अविश्वासी का जो कोई नाता नहीं होता है। So believer and unbeliever cannot sync themselves. और जो विश्वासी हैं और अविश्वासी हैं, वो एक-दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। In the Matthew's Gospel, chapter 10, the Lord says, when He was sending two by two into into the society to witness the Lord, there He says, um, "You think that I have come to give peace in the family? No, I have come to put fire in the family." He says. और मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय में प्रभु ने जब 2-2 करके अपने चेलों को भेजते थे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं लोगों के बीच में एक करने नहीं परंतु लोगों के परिवार में आग लगाने आया हूँ। I think it's good if you can turn our Bible and then see where it is written, so that you will have a definite understanding what I'm trying to say.
मेरे साथ वो वचन निकाल लें जहाँ हम उसे पढ़ के और अच्छे से समझ सकते हैं। As I quoted 2 Corinthians chapter 6, let me read from first chapter, 2 Corinthians chapter 6. दूसरा कुरिन्ती की किताब उसका 6वां अध्याय। Um, verse 14. Verse 14. Do not be unequally yoked together with unbelievers. What fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with the darkness? और यहाँ दूसरा कुरिन्ती 6 के 14 वचन में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल-जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। Verse 15 and 16 as well. And what accord has Christ with Belial? Or what part has a believer with an unbeliever? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as the Lord said, I will dwell in them and walk with them. I will be their God, and they shall be my people. और 15-16 में जैसे लिखा है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। And verse 17, therefore, come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. और 17 वचन में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। Verse 18, I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. और 18 वचन में, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। Verses 14 to verses 18, if we can carefully study a little deeper, we understand that believer and unbeliever cannot walk together beyond a certain distance. और दूसरा कुरिन्ती 6 अध्याय उसके 14 से लेकर 18 तक हम जब वचन को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तो ये हमको पता चलता है कि एक विश्वासी और एक अविश्वासी एक साथ एक केवल एक सीमित सीमा तक ही चल सकते हैं। I was remembering one illustration when I was very young. Let me quote that illustration so that you will be able to catch it. Although you know it well, but still, let me remind you. और जब मैं जवान था उस समय मैंने कुछ बातें अध्ययन की थी और सीखी थी, और मैं आपको भी उसे बताना चाहता हूँ। So we used to raise chickens. यस अंकल? We used to raise chickens. So we put eggs and then it broods and then chicken comes out and we used to raise chickens. ओके। और जब हम अंडों के अंदर से उसको सेंकते हैं और उसमें से जब मुर्गा और मुर्गी निकलते हैं, चूजे निकलते हैं। So I remember that my mother used to keep few ducks eggs also under the chicken, under the और hen. मैंने We better say hen. Mm. यस अंकल। तो मैंने देखा कि जो मेरी माताजी हैं उन्होंने जो मुर्गी होते हैं उसके अंडों के साथ में बतख के जो अंडे होते हैं वो भी मुर्गी के नीचे रख दिए। We were so young, we were so anxious how either ducklings or chickens come out of the egg. We used to watch, after 21 days, slowly it picks with his beaks and then comes out. और हम जानते हैं कि इन अंडों के अंदर से चूजे बनने में लगभग 21 दिन का समय लगता है, और ये उस अंडों को तोड़कर ये छोटे चूजे बाहर निकल आते हैं। So we see both ducklings and chicken, they both follow the same hen. Ducklings, they never knew that, this is not its mother. और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बतख के जो छोटे चूजे हैं और जो मुर्गी के छोटे चूजे हैं, दोनों एक साथ मुर्गी के नीचे बढ़ रहे हैं, परंतु बतख के बच्चे को पता नहीं है कि वो मुर्गी के नीचे पले बढ़ रहे हैं। So nearby our house, there is a little pond, a little watery pond, not big one, but smaller one. और हमारे घर के पास में एक छोटा-सा तालाब था। To our utter surprise, what I found was both will walk together along with the hen, but whereas into the water,
Only ducklings can get in, but not the chicken. और हमने ये देखा कि दोनों के दोनों बच्चे चूजे जो हैं वो मुर्गी के साथ उस तालाब तक गए, परंतु केवल जो बतख के चूजे थे वे ही पानी के अंदर गए और बाकी चूजे नहीं गए। I think that's a good illustration wherein we can learn a lesson. A believer and unbeliever can walk together only to certain extent, and beyond certain extent, there need to be separation. There ought to be separation. That's what Bible categorically says. और हम इस जो कहानी से एक शिक्षा ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं कि एक विश्वासी एक अविश्वासी के साथ एक सीमा तक ही चल सकते हैं और उस सीमा के बाद में उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए, जैसा कि वचन में लिखा है विश्वासी और अविश्वासी का एक समान वो जुए में नहीं चल सकते। And then Matthew's Gospel, chapter 10. Please turn with me to verse 34 onwards. तो उसके बाद हम मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय उसके 34 वचन से आगे पढ़ सकते हैं। Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter in law against her mother in law. And a man's enemies will be those of his own household. और ये हम मत्ती 10 अध्याय उसके 34 से लेकर 36 के बीच में लिखा है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। In the earlier days of my Christian life, I was actually confused to try to understand this portion of the scripture. और शुरुआती मसीह जीवन में मैं मेरे लिए बड़ा कठिन होता था कि मैं इस वचन को कैसे समझूँ, ये मेरे लिए एक समझना कठिन था। Because I by heart, I learned by heart Matthew's Gospel, chapter 11, verse 28, where it is said that come to me, all you who labor and are heavy laden, I will give you rest. और जैसा कि मैं मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 28 में अध्ययन किया था, मैंने पढ़ा था, वहाँ लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँगा। In John's Gospel, chapter 14, the Lord says, I give you my peace. Even in other और part of the scripture, it is written that I give you peace, not as the world gives. I give you my peace, he says so. और जैसे कि यूहन्ना का सुसमाचार उसके 14 अध्याय में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूँ और मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। But here he says in verse 34, do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace, but a sword. And even verse 35 says, I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, a daughter in law against her mother in law. A man's enemies will be those of his own household. I was really confused to understand this fragment of the scripture. और यशायाह सॉरी मत्ती सुसमाचार उसके 10 अध्याय का ये 34, 35 और 36 वचन ना मुझे आश्चर्य में डाल देता है, जहाँ ये लिखा है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। और मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। And slowly I began to understand because if we have to understand any text of the scripture, we need to understand its context. और बाद में मैं धीरे-धीरे इसके गहराई तक पहुँच सका और समझ सका कि किसी वचन को उसका मतलब अर्थ निकालने से पहले उसके हमको संदर्भ को समझना है। In the 10th chapter, the Lord is sending two by two disciples for about 70 of his disciples into the society to preach the word. और यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय में प्रभु ने 2-2 करके अपने चेलों को भेजा और लगभग 70 चेलों को भेजा कि वो जाकर समाज में सुसमाचार बाँट सकें। Here, the context is in a family, when one person is born again, when one person accepts the Lord Jesus Christ as his personal savior, his lifestyle, his desires, his priorities would be altogether different. और यहाँ ये बात को समझाया गया है कि जब एक व्यक्ति किसी परिवार में एक व्यक्ति सुसमाचार को ग्रहण करता है, मन फिराता है, तो उस मनुष्य की जो मन फिराने के बाद
उद्धार पाने के बाद, नया जन्म लेने के बाद उसकी इच्छा, उसके विचार, उसके सोच-विचार और उसका व्यवहार बाकी लोगों से अलग हो जाता है। Here, for example, in verse 35, here is talked about a man and with his father, enmity with his father. और जैसे कि यहाँ पे 35 वचन में लिखा है कि वो और उसके मनुष्य और उसके पिता अलग हो जाते हैं। Its meaning is, if a son is born again and his priorities will differ, his uh, his loyalty will differ. He becomes a new creation, and his life will be transformed. और यहाँ लिखा है कि जैसे एक मनुष्य का नया जन्म होगा, तो उसका जो इच्छाएँ हैं, उसकी प्राथमिकताएँ हैं, वो बाकी संसार के लोगों से अलग हो जाएगी। So then, father will command his son, saying that you do the idolatry, and you follow so and so mischief. You follow the patterns of this world. You do so and so things which earlier he used to do. Son says, no, I cannot do this because I believe Jesus Christ. He is my master. He is my Lord. I cannot do this kind of idolatry. I cannot do this kind of things because that is diametrically opposite to the scriptures. और जैसा कि वो व्यक्ति जब उद्धार पाएँगे, तो वो कहेंगे कि मैं अब आगे मूर्ति पूजा नहीं करूँगा और सांसारिक कार्यों को नहीं करूँगा। वैसा इसलिए कहेंगे क्योंकि मैं अब एक विश्वास अब मैं आकर परमेश्वर को जान चुका हूँ। The conflict between father and son, because the son's master is different and father's master is different. These two masters, they are diametrically opposite to each other, and naturally conflict will definitely arises, and it cannot be sorted out. और यहाँ पे एक बात सही है कि मनुष्य और उसके पिता का जो गुरु है, यानी कि उनका स्वामी अलग-अलग है, इसलिए उनके बीच में एक समानता नहीं रह जाएगी, परंतु उनका व्यवहार और विचार और इच्छाएँ अलग-अलग हो जाएँगी। Instead of peace, there would be a fire in between father and son. और यहाँ पर मेल-मिलाप की जगह, शांति की जगह एक आग पिता और मनुष्य के बीच में आ जाएगा। So in the process, father will closely watch the lifestyle of son, and when he understands that he is transformed and he has become righteous and his life is filled with all discipline and love, and because he reflects the Lord Jesus Christ. और यहाँ पर उसका पिता जब अपने पुत्र को देखेगा, तो वहाँ उसका जीवन में उसका स्वभाव, उसका व्यवहार सब अलग हो जाएगा और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसके जीवन में मसीह यीशु के आने के कारण मसीह यीशु का स्वभाव दिखेगा। And son also will explain the gospel and the reason how his life was transformed. And perhaps because of his prayer and all that, father also will be born again. And then they will both will have peace. और जब पुत्र अपना जीवन की गवाही देगा कि मेरे जीवन में ये शांति इसलिए आया है कि मैंने प्रभु को ग्रहण किया है और उद्धार पाया है। और ये गवाही जब वो अपने पिता को देंगे और वो भी मन फिराकर नया जन्म पाएँगे, तब दोनों के बीच में सही मेल-मिलाप होगा। So sometimes it takes years, sometimes it takes months, or sometimes it takes long time. But one thing is sure, the promise of in the scripture it is written Acts 16 verse 31 that if you believe, you and your household shall be saved. और हमें नहीं पता कि ये महीनों में होगा या सालों में होगा या बहुत दिन में होगा, परंतु जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार परिवार के लोग एक साथ उद्धार पाके मेल-मिलाप ज़रूर होंगे, जैसा कि प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय की 31 में लिखा है कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। You may wonder why I'm explaining all these things just to explain about the ministry in the family. और परिवार के बीच में सेवकाई के लिए ये सब मैं बातें आपको इतनी ज़्यादा समझा रहा हूँ, इसको सोचकर आप आश्चर्य होंगे कि मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ। I have a reason to explain all these texts of the scripture. और ये सारे वचन को आपको संदर्भ को और वर्णन को बताने का एक महत्वपूर्ण इसका एक मतलब है। If a young man is born again before his marriage, then he will have a commitment that he will marry only a person who is born again, but definitely not a person who is not born again. और जब एक व्यक्ति अविवाहित दशा में प्रभु को पा जाता है,
और वो उद्धारकर्ता मसीह को मान के उद्धार पाया व्यक्ति बन जाता है, तो वो अपने जीवन में एक निर्णय लेता है कि मैं किसी विश्वासी से या उद्धार पाए व्यक्ति से ही विवाह करूँगा। इस प्रकार का निर्णय हम एक अविवाहित व्यक्ति के जीवन में देखते हैं। Suppose, let us take case one. A young man is a born again, and he knew the scriptures. He spent enough time to understand what the scripture says, and the lifestyle, how a Christian's lifestyle ought to be, and what kind of family a Christian should have, what kind of expectation Bible seeks from this young man. Then he will definitely seek for a person who is born again, whether boy or girl. और जब एक व्यक्ति प्रभु को जान जाता है, प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उसके दिनचर्या, उनके स्वभाव में परमेश्वर का व्यवहार और बातें रहती है, तो वो ज़रूर अपने विचारों में ऐसा सोचते हैं कि मेरा जीवन साथी भी ऐसे ही होना चाहिए जिसके जीवन में प्रभु का उद्धार प्रकट हो। And then he seeks to find the will of God. He seeks to please his master. In the process, it is our prayer that young people should be married in the will of God. और तब वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक उनकी महिमा के लिए उनकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विवाह करने की वो कोशिश करते हैं। इसलिए हमें युवाओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि वो उद्धार पाके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विवाह करें। Maybe you are a young person who is listening to this message, maybe through YouTube. Maybe you may be asking, yes, sir, I'm young person. I want to marry. I don't know how to find the will of God. Will you please explain me how to find the will of God to find the partner? और ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस संदेश को सुने, चाहे यूट्यूब में हो या कहीं से भी हो, और हमसे एक मदद माँगे कि सर मेरी मदद कीजिए क्योंकि मैं विश्वास में आया हूँ और मुझे विवाह करना है, तो मैं किस प्रकार की परिस्थितियों से निर्णय लूँ? ऐसा कोई भी हमसे पूछ सकते हैं। Actually, it's a big story. To cut the long story short, I say that every young male will have a vision for his life. और तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि संक्षिप्त में कि एक जो जवान होता है, उसके जवान लड़के के जीवन में ज़रूर कुछ दर्शन होता है। So every believer is gifted with the gift of the Holy Spirit. तो हर जो जवान है, वो पवित्र आत्मा के वरदानों को पाया हुआ होना चाहिए। So every believer will have a passion to serve the Lord in some particular direction. इसलिए हर जवान को प्रभु की सेवा का एक जुनून होना चाहिए। It does not necessarily mean that you resign your job and be a full timer. No, no, no. I'm not saying that. इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें और पूर्णकालीन सेवा में आ जाएँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। My saying calling means God has a purpose with each and every person with a particular direction. इसका मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि परमेश्वर का हर एक व्यक्ति के लिए एक निश्चित एक अलग दिशा में चलने का प्रभु का एक बुलाहट और एक योजना होता है। And this young man will share with the person with whom he wanted to settle down. He will share with that person saying that this is my calling, this is my burden, this is my passion, these are all my desires, these are all my resources, and these are all my lifestyle. Will you be happy to follow me? Will you be happy to coordinate with me, to associate with me, to agree with me? और जब एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जवान जो है अपने जीवन की इस सही उद्धार पाई की दशा को और परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाले एक निर्णय को लेकर किसी से पूछ सकते हैं अपने और दूसरे जवान से जिससे भी विवाह करना चाहते हैं एक निर्णय पूछ सकते हैं कि मेरा जीवन इस प्रकार का है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? So, because the girl is also born again, she also will have passion to love the Lord and to follow the Lord. She'll be much more happy to follow in the footsteps of this young man. And if she is the right person to fit into his framework, she will also agree and she will enjoy peace. And the Lord also will guide them, and both will marry. और जब उस जवान भाई के साथ में इस प्रकार की एक जवान
जो वो भी विश्वास में और उद्धार पाई हुई होती है, विश्वासी होती है, वो दोनों विवाह करने का निर्णय लेते हैं तो उनका जीवन मेल खाता है और वो एक-दूसरे के साथ मेल-मिलाप से रहते हैं, उस परिवार में शांति रहती है और परमेश्वर भी उनके परिवार की अगुवाई करते हैं। So they pray together in the morning, they pray together in the evening, they share not only other things, but even the spiritual concerns, how the Lord is leading and guiding. They'll have family prayer, then they'll have sharing, they really do the fellowship among themselves. और वे हमेशा ये जो दोनों जवान हैं, वो ना केवल एक साथ सुबह-शाम को प्रार्थना करते हैं, परंतु वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई की बातों को भी एक-दूसरे को बताते हैं और कई लोग के सामने गवाह बनते हैं। So that such family who knew the will of God and then marry, it is easy for them. It's not much difficult to do the ministry as a family. और ऐसा परिवार जो जिसमें एक-दूसरे के साथ मेल खाए हुए विश्वासी एक-दूसरे के जीवन साथी बन के एक परिवार बनते हैं, ऐसा परिवार को परमेश्वर की इच्छा को जानने में और सेवा करने में कठिनाई नहीं होती है। Normally, there would be a difficulty, as we have seen in the some time back, according to Matthew's Gospel, chapter 10. One person is born again, father and mother, they are not born again, sisters are not born again. But this young man wanted to marry a believer, and there will be lots of opposition and lots of music will go on. जैसा कि हम यहाँ देखें मत्ती सुसमाचार उसके 10 अध्याय में, जहाँ पे परिवार में 2 लोग एक साथ विश्वास में ना होने के कारण उसके बीच में एकता नहीं होती है, मेल-मिलाप नहीं होती है, वहाँ पर उनके बीच में अलग विचार होने के कारण सेवा में बहुत सारी परेशानियाँ होती है। So then his fellowship partners, maybe the people of the local church with whom he is worshiping, with whom he is praying, they will help him to find the will of God, how to proceed further in the midst of opposition and persecution. और ऐसा परिवार जो कलीसिया के साथ अच्छे से संगति करते हैं और उनको कलीसिया के और विश्वासी गाइड करते हैं और उन्हें सताव में और विभिन्न परिस्थितियों में उन्हें सही रीति से बढ़ने के लिए सहायता कर सकते हैं। So under all circumstances, we need to fulfill the scriptures. A believer must definitely marry only a believer. इसलिए हम अपने विश्वासियों को अगुवाई करना है कि एक विश्वासी हमेशा दूसरे विश्वासियों से ही विवाह करे। If he compromises, if he submits and surrenders to the situation concerned and marries an unbeliever, will definitely face lots of music. And many people say that, oh, it's easy. What is there after marriage? She will follow you. No, she won't follow. Or he और won't, कई or he लोग doesn't follow. ऐसा कहेंगे कि समझौता कर लीजिए और एक अविश्वासी के साथ विवाह कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और बाद में वो परमेश्वर के विश्वास करने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा उनका सोच बस है, इससे बहुत सारी परेशानियाँ और परिवार में झगड़े और गड़बड़ियाँ होती है। That's the case number one. And case number two, we have seen two different cases. अभी हमने केस नंबर 1 देखा, अब हम और केस और अलग-अलग इस प्रकार की कहानियों को देख सकते हैं। Let us see consider case number three, that after marriage, maybe a wife or husband, any one of them will know Lord Jesus Christ as a personal savior. अब आप तीसरी एक स्थिति देख सकते हैं, तीसरी कहानी जिसमें एक पुरुष और एक महिला विवाह के बाद में दोनों में से कोई एक प्रभु को जानते हैं और विश्वास में आते हैं। And then particular wife or husband will face lots of opposition right in their own family if they are from non-Christian background, and because they do not know the truth, they simply wanted to follow the law of the land according to their own forefathers' tradition. और चूँकि यहाँ पर उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके जो विरोधी पक्ष हैं, उनके जीवन साथी, वो अपने पूर्व पिताओं के चाल-चलन और परंपरा के अनुसार वो अलग चीज़ों के पीछे चलने वाले एक व्यक्ति होते हैं। A believer will follow the Bible, the scriptures, which is the standard and the landmark for to live and to every inch of our life we need to follow the instructions, the commands, and the principles uh, written in the scriptures. और एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का जो वचन है, बाइबिल है, एक मापदंड होता है
उनके जीवन जीने के लिए एक वो दिशा को दिखाता है, नियम को बताता है, निर्देश को बताता है। इसलिए एक विश्वासी परमेश्वर के वचन के निर्देश पर चलता है। So it's a conflict between two masters. इसलिए यहाँ पर 2 स्वामियों के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। So till both wife and husband are born again and follow the same master, they will have conflicts, and it's not easy to have the family ministry together. और जब तक पति और पत्नी दोनों एक बुधार में नहीं आ जाते, तब तक उनके जीवन में इस प्रकार की खींचतान चलती रहती है और उनके बीच में एक युद्ध की परिस्थितियां बनी रहती है। So in my own family, I was actually before my conversion, my marriage was fixed. और मेरे परिवार में भी ऐसे ही हुआ। मेरी अ, बदलाव से पहले ही मेरा विवाह हो गया। So actually, so to say, I was converted in the context of marriage. What that mean? I was converted, I was born again in the context of marriage. So what I mean to say that I did not know that a believer should marry a believer, and I did not know that I had to wait upon to find the will of God. My parents settled my marriage, and I did not know anything about this because I was not born again. I was born again only in the context of marriage. और मैं विवाह से पहले चूँकि उद्धार में नहीं आया था और परिवार के बाकी लोगों ने मेरे लिए माता-पिता ने शादी किया, इसलिए मैं विवाह के बाद में प्रभु को ग्रहण किया। इसलिए विवाह के संदर्भ में मुझे विश्वासियों के रूप में निर्णय लेने का पहले विचार नहीं था। So for that reason, in our early married life, we had few struggles. इसलिए मेरे विवाह के शुरुआती दिनों में बहुत सारा संघर्ष मेरे जीवन में था। But God guided us because my father and mother were born again, and through their guidance and my children's naming and bringing up and all that, even with the help of the local assembly, not much music, but we had some struggles. But by God's grace, we could serve the Lord as a family. प्लीज़ रिपीट अंकल। So although I did not have enough knowledge and understanding of the scriptures, because of my father and mother, they were born again, and the local assembly fellowship, I was somehow helped and enabled to serve the Lord as a family. और चूँकि मेरे माता-पिता भी मन फिराए हुए थे, उन्होंने भी नया जन्म पाया हुआ था, इसलिए मुझे परिवार में, कलीसिया में बाकी जगहों पर सहायता मिली और उनके द्वारा मुझे मदद मिली प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने के लिए। Because I myself did not have enough understanding of the scriptures, and my wife as well, we had many struggles to have that unity of the spirit in the ministry, and we had little friction here and there, and certain misunderstandings, but God overall given us grace to somehow serve the Lord together as a family. और चूँकि हमें ज्ञान नहीं था और विश्वास में हम शुरुआती दिनों में आए थे, इसलिए मेरे और पत्नी के बीच में कभी-कभी कुछ-कुछ बातों में अलग-अलग प्रकार की परिस्थितियाँ आ जाती थी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उन्होंने सारी बातों को सही करके हमें अपने मार्ग में अगुवाई किया। Why I am sharing all these things with you as an open book without any, hiding with integrity. Perhaps this may help you to understand the very context of serving the Lord as a family. और मैं ये बातें आप लोग को बिल्कुल खुली बेपरद जो पर्दे को हटाकर ऐसी कहानी के समान क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें कि परिवार में किस प्रकार की सेवकाई होनी चाहिए। Please remember, ministry is not individual or independent. We serve the Lord as a family. We serve the Lord as the family of God, along with the local church. और ये बात याद रखना है कि कभी भी परमेश्वर की सेवा स्वतंत्र और व्यक्तिगत नहीं होती है, परंतु जो सेवकाई होती है, वो परिवार के साथ में और समुदाय के साथ में होती है। No doubt it may begin with individual believer, and slowly this believer will join the team
maybe as a family or maybe as a family of God. हाँ, ये ज़रूर है कि शुरुआत में सेवकाई व्यक्तिगत हो सकती है कि वो व्यक्तिगत रूप से शुरू हो, परंतु आगे जाकर वो पारिवारिक रूप में और सामुदायिक रूप में सबके साथ मिलकर आगे बढ़े। When I say family, means wife and husband and children. When I say family of God, means the local church. और जब मैं एक परिवार कहता हूँ तो उसमें माता-पिता, बच्चे आते हैं, परंतु जब मैं आपको एक क क क कलीसिया के परिवार कहता हूँ तो उसमें पूरे बहुत सारे परिवार आ जाते हैं। So, family of God, family. These two things, I mean. और परमेश्वर के परिवार जब हम कहते हैं तो उसमें बहुत सारे परिवार अर्थात कलीसियाएँ आ जाती हैं। So, Isaiah's son, Shear Jashub, means the rest will return. और यशायाह का जो पहले पुत्र है जिनका नाम The rest will return. जस्ट तो जो बचा हुआ होता है वो they'll come back. यस अंकल और जो उनके जो पहले पुत्र का जो नाम है सारिया शुभ उसका मतलब है कि बचे हुए लोग लौट आएंगे। That means after 70 years, the people of God will get back to their own homeland. और इसका मतलब यही था कि एक प्रकार की भविष्यवाणी थी कि 70 वर्ष के बाद में परमेश्वर के जो लोग हैं, प्रजा है, वो अपनी खुद की भूमि में वापस आ जाएंगे। Mahar Shalal Hashbaz, the meaning of other son means rushing the booty. Maybe the Babylonians, they are rushing to take the spoils. और जो उनके दूसरे पुत्र का नाम जो महेरशा लाल आशबस था, इसका मतलब यही है कि वे जो अपने शत्रु हैं, जो बेबीलोन में गुलामी थे, वहाँ के लोगों को लूट कर धन संपत्ति को लूट कर ले आएंगे। By pronouncing the children's name, they are actually communicating a message to the people around them. और यहाँ जो बच्चों का नाम है, उसके अर्थ के अनुसार वो परमेश्वर जो है आस-पास के लोगों के बीच में एक संदेश देना चाह रहे हैं। God is not only using Isaiah, he is using his children as well. और परमेश्वर ना केवल यशायाह को परंतु उसके बच्चों को भी उपयोग कर रहे हैं। That's what even Joshua said, Joshua chapter 24, verse 15. As for me and my house, we will serve the Lord. जैसा कि यशायाह की किताब उसके 24 अध्याय में यहोशू उसके 24 अध्याय उसके 15 वचन में यहोशू कहता है कि मैं और मेरा घराना जीवित परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। It does not necessarily mean that everybody will do the same work in the family. और वो ये ऐसा नहीं कहना वो चाह रहे हैं कि हर कोई ऐसा कर पाएंगे। The wife will support husband in some way or the other so that he will do with full of concentration. और ज़रूर पत्नी जहाँ तक हो सके अपने पति का सहयोग करे ताकि वो सेवकाई में एकाग्रचित हो सके। And children also will do whatever they can in supporting the father. And ultimately, both children and wife supporting husband all together work as a team and ultimately fulfill the purpose of the Lord. और बच्चे भी जहाँ तक हो सके अपने पिता का सहयोग करें सेवा में, उस प्रकार पत्नी और बच्चे और पिता सभी लोग मिलकर परिवार में परमेश्वर की सेवा करें और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकें। Some people think that serving the Lord as a family and everybody should carry a shoulder bag with full of tracts and then go onto the street and everybody keep on distributing the tracts and or take a megaphone, keep on shouting the gospel verses, and not necessarily that everybody will do the same. But ultimately, a person who has to pray will pray, a person who has to support the family or some way or the other. Ultimately, as a team, they work together with one mind and with unity of the spirit, and they ultimately do the work of the Lord as a family. That's important. और यहाँ पे ये कहने का ये मतलब नहीं है कि परिवार के हर एक लोग अपने कंधे पर बैग लगाएं और वो ट्रैक्स लेके पूरा घूमते रहें या फिर बहुत सारी माइक लेकर जोर-जोर से चिल्लाते रहें, ऐसा नहीं है। परंतु परिवार के सभी लोग मिलकर कहीं न कहीं एक-दूसरे का सहयोग करते हुए, प्रार्थना करते हुए, एक-दूसरे के साथ मिलकर सेवा करें ताकि वो पूरा परिवार मिलकर परमेश्वर के That- उद्देश्य को पूरा कर सके। So it's not just only the dimension of evangelism. There are various kinds of ministries God gives to His people. और ना केवल ये सुसमाचार की ही बात नहीं है परंतु
विभिन्न दृष्टिकोण से परमेश्वर अपने लोगों को सेवा देते हैं। So whatever the ministry given to the head of the family and whole family members should follow. It does not mean there are some people who think that wife will have some kind of ministry and husband will have some other kind of ministry. No two different compartments. Family और together with unity of mind and spirit. Whatever God has given, that's what I said. Vision. That's what I mean. और कई बार बहुत लोग सोचते हैं कि पति को अलग सेवा मिली हुई है और पत्नी को अलग सेवा मिली हुई है और वो अलग प्रकार की सेवकाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, परंतु उन्हें उनको एक आत्मा और एक मन होकर परमेश्वर की इस इच्छा को पूरी करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। Ultimately, there ought to be a Christ-centered family. Ultimately, the scriptures-oriented family, and thereby God is glorified and the family is edified. Because of them, the people around or among whom they serve, they will be edified. और यहाँ पर जो परिवार है वो वचन पर आधारित होना चाहिए। यहाँ जो परिवार है वो परमेश्वर के वचन पर और मसीह पर आधारित होना चाहिए, ताकि वो परिवार आसपास के पूरे क्षेत्र के लिए परमेश्वर की महिमा का और गवाही का कारण बने। I did not actually plan to talk much about family ministry, but spontaneously I am guided to talk about this family ministry. It's only an introduction. Naturally, I thought I'll finish this book in this time. I'm just wondering, don't know why God is leading and guiding in this way. और मैं जो परिवार के बीच में आपको शिक्षा दे रहा हूँ, ये पता नहीं क्यों है, लेकिन शायद परमेश्वर की इच्छा है कि परिवार की सेवकाई के विषय को आप जानें, नहीं तो इतना समय तक हम यशायाह की किताब को बहुत खत्म कर लिए होते। Maybe somebody is needed, and so God is ministering to you. Why don't you consider this and and work on it for the glory of God? और ज़रूर किसी न किसी परिवार को इसकी ज़रूरत है, इसलिए परमेश्वर इस प्रकार का संदेश देते हैं और ज़रूर इसके ऊपर में आप कार्य करें, आपका परिवार कार्य। Isaiah's contemporaries were Hosea and Micah. और ये जो इसी समय में हम जानते हैं कि होशिया और मीका नबी जो थे, वो भी इसी कार्यकाल के दौरान ही वो भी लगभग भविष्यवाणी कर रहे थे। So Hosea was serving among the people in the northern part, and Micah was serving among the southern part along with Isaiah. और यशायाह के साथ में होशे नबी दक्षिणी उत्तरी राष्ट्र राज्यों के बीच में और मीका नबी वो दक्षिणी राज्यों के बीच में उसी समय नबूवत की सेवकाई कर रहे थे। Isaiah ministered for about 40 to 50 years, and these 66 books we don't find in chronological sense, but we find in thematical sense. और यहाँ हम देखते हैं कि यशायाह ने लगभग 40 से 50 साल की सेवकाई की है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके जो वचन लिखे हुए हैं वो समय काल के अनुसार नहीं लिखे हुए हैं। So the text is written with a thematic context oriented, not timing chronological oriented. What the thematic means है? Thematic means there is one topic. When he deals the topic, then you don't find things writing happened in the time frame chronological sense. और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी घटनाओं को अलग-अलग रूप में अलग-अलग भागों में लिखा हुआ है, परंतु हम ये नहीं जान सकते कि जिस भाग का वो वर्णन कर रहे हैं वो एक सही समय काल पे लगातार चलने वाली घटना नहीं है, परंतु अलग-अलग समय काल पर हुई घटनाओं को उन्होंने एक साथ रखा है। Judaic tradition understanding is that Isaiah the prophet was a martyr. Even its reference is shown in Hebrews chapter 11 and verse 37. और जो यहूदी लोग हैं, पूर्वज लोग बताते हैं कि यशायाह की मतलब शहीद हो गए थे वो, जो कि हम इब्रानियों की किताब 11 अध्याय के 37 में देखते हैं। So it looks like Isaiah's favorite word is Holy One of Israel, because this particular word is used many times. और यशायाह का जो मुख्य जो पसंदीदा शब्द है
वो इज़राइल का पवित्र है, क्योंकि इन्होंने ये शब्द बार-बार उपयोग किया हुआ है। So many scholars say that Isaiah is like the book of Isaiah itself is a miniatured Bible. और बहुत सारे लोग बताते हैं कि यशायाह की जो पुस्तक है, वो एक मिनी बाइबल यानी एक छोटी The book of Isaiah can be divided into two parts. The first chapter to verse 39, we find the judgments of God because of sin, both at Jerusalem, Judah, and also the sin of Israel. और हम देखते हैं कि इसमें जो यशायाह की जो किताब है उसको 2 भाग में बाँटा गया अध्ययन करने के लिए, एक अध्याय से 40 अध्याय तक और दूसरे भाग में 40 से 46 अध्याय तक 66 अध्याय तक। और हम यहाँ देखते हैं पहले भाग में परमेश्वर ने यहूदा और इज़राइल के पापों और न्याय के विषय में वर्णन किया हुआ है। We also find the same in the Old Testament. In the first 39 books, we find the judgments of the people of God, what they did, because of what they did. और हम और इसी प्रकार हम पुराने नियम की वास्तव में 40 पुस्तकों में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में किस प्रकार लोगों से न्याय किया हुआ है। And then the rest of the Bible, the 27 books, we find the glory of God through Jesus Christ, Gospels and the history, the book of the Acts, and then the epistles. Almost all in the same pattern, we find that the half of the book covers the judgments of God, the rest of the book covers the glory of God, just as we find in the New Testament. और जैसे कि नए नियम की 27 पुस्तकों में हम सुसमाचार को, प्रेरितों के काम को और प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बहुत सारी भविष्यवाणी और महिमा को देखते हैं। उसी प्रकार यशायाह की पुस्तक भी बाकी के बचे हुए 27 अध्याय में परमेश्वर की महिमा के बारे में बातें करते हैं। So, in the first part of 1 to 39, we find the ruling of Assyrian Empire, and the later part, 40 to 66, we find the Empire of Babylonian. और जो यशायाह की 1 अध्याय से 39 अध्याय के बीच में हम असीरियन लोगों के राज को देखते हैं, उनके शासनकाल को, और बाकी के 27 अध्याय में इसका मतलब 40 से 66 अध्याय के बीच में बेबीलोन के राज को देखते हैं। In the first part, in the first 39 chapters of Isaiah, it can be further divided into 5 parts. और जो पहला भाग है जिसमें 1 अध्याय से 39 अध्याय है, उसको फिर से अध्ययन के लिए 5 भागों में हम बाँट देते हैं। So, first part is first 12 verses. We find the God's judgments on Jerusalem and Judah. और उसको जो हम देखते हैं पहले अध्याय से 12 अध्याय के बीच में यरूशलेम और यहूदा के विषय में न्याय को देखते हैं। Chapter 13 to 23, we find the judgment on another nations. और 13 से लेके 23 अध्याय के बीच में हम दूसरे राष्ट्रों के न्याय को देखते हैं। Again, we find the same judgments on Jerusalem and Judah from 24 to 27 chapters. और 24 से 27 अध्याय के बीच में फिर से हम यरूशलेम और यहूदा के न्याय को देखते हैं। In the fourth part of the book, chapter 28 to chapter 35, we find the judgment on 10 tribes of Israel in the north. और 28 अध्याय से 35 अध्याय के बीच में हम जो उत्तरी भाग है इज़राइल के, वहाँ के 10 गोत्रों के न्याय को देखते हैं। So chapter 36 to 39, we find the very important history written there. और 36 अध्याय से लेकर 39 अध्याय के बीच में हम इतिहास को देखते हैं। In the second part of the book, chapter 40 to 66, we can subdivide it into 3 parts. और जो यशायाह का दूसरा भाग है 40 से 66 अध्याय के बीच में, उसको भी 3 भागों में हम बाँट सकते हैं। Just as we find the openings of the New Testament through John the Baptist, we also find in the same way, chapter 40 onwards, the comfort to the returned captives. और जैसे कि नए नियम में हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म के द्वारा एक नई सेवकाई को देखते हैं, उसी प्रकार यशायाह की किताब 40 अध्याय से 48 अध्याय के बीच में हम जितने भी जो कैद में गए हुए लोग हैं, उनके वापसी के घटनाओं को देखते हैं। So just as we find at the end of the Gospels, the cross and the crucifixion,
we find the same picture from chapter 49 to chapter 55, persecuted servant of God. और जैसा कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और उनका क्रूसीकरण हुआ था, इन सारी सताव की घटनाओं को 49 अध्याय से 55 अध्याय के बीच में देखते हैं। इसका मतलब वहाँ पर जो सेवकाओं को देखते हैं। Just as we find in the end of the Gospels how the Lord Jesus Christ rose again victoriously, he ascends, and then he sends the Holy Spirit upon the earth in Acts chapter 2, and from there, how God started to build his kingdom spiritually, and then it continues to Revelation, and how the eternal kingdom rules. All such things are covered in the third part of chapter 56 to 66, God's eternal kingdom's rule. और जैसा कि नए नियम के अंतिम भागों में प्रभु यीशु मसीह का जी उठना और उसके बाद वो किस प्रकार कलीसियाओं को निर्माण करते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 से, और वो पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजकर अपने राज्य की स्थापना करते हैं, उसी प्रकार की घटनाओं को हम 56 अध्याय से लेकर 66 अध्याय के बीच में देखते हैं, जहाँ पर परमेश्वर का जो अनंत राज्य है उसके शासन आने को देखते हैं। So the book of Isaiah is a Bible within the Bible. इसलिए यशायाह की पुस्तक को बाइबिल के अंदर में एक बाइबिल कही जाती है। So there are very important chapters in these 66 books. I have quoted on the very slide chapter 6 and chapter 9, chapter 35, chapter 40 and chapter 53 and chapter 61. These chapters are highlighted chapters in this book, and we find amazing pictures of God's truth. और यशायाह की जो किताब है उसमें 66 पुस्तक हैं, 66 अध्याय हैं। उसमें से मुख्य अध्यायों को मैंने यहाँ पर चिन्हित किया हुआ है, जिसमें बहुत ही विशेष घटनाएं हुई थी, उसको यहाँ पर दिखाया गया है, उनको प्रकाशित किया गया है। 6वें अध्याय के बीच में, 9वें अध्याय के बीच में 35, 40, 53 और 61 अध्याय। Christ is presented as a suffering servant and eternal king in such a marvelous way in this book. और इस किताब में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के एक सेवक के रूप में जिन्होंने दुख उठाया है और अनंत राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। If you understand this one single slide, you'll be able to catch the essence of whole book. और अगर इस एक जो पेज है, जो स्लाइड है, इसको अगर आप अध्ययन कर पाएंगे तो पूरे यशायाह की किताब की एक रूपरेखा को आप समझ सकते हैं। So this is how expository teaching is presented. और इसलिए यहाँ पर इसको एक प्रकाशित करके एक संक्षिप्त रूप में बताने का एक ये शिक्षा है। We give a title, Suffering Servant and Eternal King. और इसलिए इस यशायाह की पुस्तक को एक ऐसे सेवक और अनंत राजा के रूप में दिखाया गया है जिनको सताव का सामना करना पड़ा। So there's a title of the book of Isaiah. और यशायाह की बुक की जो शीर्षक है, उसका शीर्षक है एक जो ऐसा सेवक और एक अनंत राजा जिसने दुख उठाया। So that is the essence of the whole book of Isaiah, is its title. यस अंकल। The title is the summary of the whole book in one line. और जो हम जब किसी पुस्तक का शीर्षक देते हैं तो वास्तव में वो शीर्षक उसकी पूरी पुस्तक की एक कहानी को प्रस्तुत करता है। So this book is divided into two sections. First section is chapter 1 to chapter 39, and second section is chapter 40 to chapter 66. और इस किताब को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में 1 अध्याय से 39 अध्याय है और दूसरे भाग में 40 से 66 अध्याय है। The first part is named as God's judgments, and second part is named as God's glory in the future. पहले भाग को परमेश्वर के न्याय के रूप में प्रकट किया गया है और दूसरे भाग को परमेश्वर की जो महिमा जो भविष्य में प्रकट होने वाली है उसके रूप में दिखाया गया है। So the main sections are further divided into subsections. The first part is further divided into 5 sections, and the second part is further divided into 3 sections. और फिर से पहले भाग को 5 भाग में बांटा गया है और दूसरे भाग जो है
जिसमें 40 से 66 अध्याय है, उसको फिर से 3 भागों में बाँटा गया है। And each subsection is given a name, a title, and again the duration from which chapter to which chapter. और उसे जो फिर से हमने भागों में बाँटा है, उस भागों का नाम भी लिखा गया है कि उसमें क्या घटनाएँ हुई थी और कौन से अध्याय से लेकर कौन से अध्याय तक चुना गया है, वो भी लिखा है। So I think you are trying to understand my way of presentation from the beginning. This is what I have been doing from the Genesis, Exodus, Numbers, and Leviticus and Deuteronomy. Every book you must have been carefully observing that I was doing in the same way. और आपने एक चीज़ को देखा होगा कि मैंने शुरुआत से जो परमेश्वर का जो वचन है बाइबल, उसका अध्ययन इसी प्रकार किया हुआ है। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, विवरण और हर एक पुस्तकों को आपने देखा होगा कि मैंने इस प्रकार चित्रित करके अध्ययन किया हुआ है। That is how we need to study every book in the Bible. और यही है कि हमको इसी प्रकार बाइबल की हर एक किताब का अध्ययन करना चाहिए। So if you understand the one slide, the whole book is understood. इसलिए ताकि आप अगर उस एक स्लाइड का अध्ययन करें तो आप उस पूरी किताब को समझ सकते हैं। So I'm not going to explain each part of it. It's very simple because again each chapter is given a title. और ये ज़्यादा वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रत्येक जो भाग है उसके शीर्षक में उसकी घटनाएँ लिखी हुई है। I will just read and that's sufficient. और एक बार हम उसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। Chapter 1, Israel's revolt and God's judgment. तो व्हाट दैट रिवोल्ट मीन्स अंकल? Revolt, rebellious. यहाँ पर Israel हम देखते rebelled हैं कि against God. यस अंकल, इज़राइल के विद्रोह को और परमेश्वर के न्याय को हम पहले अध्याय में देखते हैं। Chapter 2, we find the future glory of Messiah and God's judgments. और दूसरे अध्याय में हम मसीहा की जो भविष्य में जो महिमा आने वाली है उसको और परमेश्वर के न्याय को देखते हैं। So chapter 3 to chapter 5, we find Judah's sins, punishment, and God's glory. और तीसरे अध्याय से 5वें अध्याय के बीच में यहूदा के पाप और उसकी सजा और परमेश्वर की महिमा के बारे में देखते हैं। Chapter 6, we find responsibilities, consequences of Isaiah's call. और 6वें अध्याय में हम जो यशायाह की पुकार थी, उसकी बुलाहट थी, उसके आने वाली उसकी पुकार की जो घटना का क्रम और जिम्मेदारियों को देखते हैं। Chapter 7 to chapter 10, we read the attack on Judah and signs of Messiah. और 7 से 10 अध्याय के बीच में हम यहूदा पर आक्रमण और मसीहा के चिन्ह को देखते हैं। Chapter 11 and 12, we find the future glory of Messiah King. और 11 और 12 अध्याय में हम जो मसीहा जो राजा था, उसके भविष्य में होने वाली महिमा को देखते हैं। And then other nations, 13 to 14, Babylon and Philistia, and 15, 16, Moab, 17, Damascus and Israel, 18, Ethiopia, 19, 20, Egypt, 21, Babylon, Edom and Arabia, 22, Jerusalem, 23, Tyre and Sidon, the judgments of God. और परमेश्वर के न्याय के हम इस भाग को हम 13 अध्याय से लेकर 23 अध्याय के बीच में देखते हैं। इसमें से 13 और 14 अध्याय के बीच में बेबीलोन और फिलिस्तियों के बीच में न्याय है। 15 और 16 अध्याय में मोआब के लिए है। 17 अध्याय में दमिश्क और इज़राइल के लिए है। 18 अध्याय में इथोपिया के लिए है। 19 और 20 अध्याय में मिस्र के लिए है। 21 अध्याय में बेबीलोन, एदोम और अराबिया के लिए है। 22 अध्याय में यरूशलेम के लिए है और 23 अध्याय में टायरे और सीदोन के लिए। And 24 to 27, we find again the judgments of God on Jerusalem and Judah. 24, on there, it's clearly we understand that God judges any nation because of its own sin. That's chapter 24. And chapter 25, because God has redeemed Zion, they sung a song, song number 1, and chapter 26, song number 2. And chapter 27, we find both God's blessings and God's judgments. और 24 अध्याय और 24 से 27 अध्याय के बीच को भी हमने जो यरूशलेम और यहूदा के न्याय के विषय में बांटा था, उसमें से हम 24 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर हर वो राष्ट्र का जो पाप करते हैं, वो उसका न्याय उसको प्रकट होता है, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो। और 25 अध्याय में हमने देखा कि जब परमेश्वर सिय्योन को छुटकारा देता है, तो उसके गीत को हम छुटकारे के गीत नंबर 1 को देखते हैं।
26 अध्याय में सिय्योन के छुटकारे के गीत नंबर 2 को देखते हैं जो परमेश्वर ने दिया, और 27 अध्याय में परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर के न्याय को देखते हैं। In these songs, we find poetic format, and scholars say that these portion talks about the future glory. और ये जो गीत लिखे हुए हैं, ये कविता के जो रूप में प्रकट किया गया है, और बाइबल के स्कॉलर बताते हैं कि ये भविष्यवाणी की बातें हैं जिसे वहाँ पर इस रूप में बताया गया है। Please remember the prophetic pronouncement. Few may fulfill in the immediate future, and few may fulfill in the far end future. We have already explained when we studied about prophets. और जब हमने भविष्यवक्ताओं का किताब पढ़ना शुरू किया था, तब हमने इस बात को देखा था कि भविष्यवक्ताओं की कही हुई बातें कुछ पहले और पूरी हो जाती थोड़े समय में, और कुछ बातें बाद में पूरी होती हैं। And 28 to 35, we find the judgment on 10 tribes of Israel. 28 and 29, God's comfort on Israel and Judah. And 30 to 31, because Israel, they have made an alliance with Egypt, and so the consequences they have to pay. And chapter 32 to 34, there we find the judgment of God and God's comfort in the future on Judah. And chapter 35, God's glory in Zion in its future, maybe in the eternity or 1,000 years reign, we don't know. There are two different schools of thought. और चौथे भाग में 28 से 35 अध्याय के बीच में हम देखते हैं जो इज़राइल के जो उत्तरी भाग के 10 गोत्रों के विषय में न्याय हुआ था, उसको हम देखते हैं 28-30 अध्याय के बीच में। परमेश्वर ने इज़राइल और यहूदा के राष्ट्रों पे जो विश्राम दिया, उसको हम देखते हैं। 30 और 31 अध्याय के बीच में जो इज़राइलियों के बीच में न्याय प्रकट हुआ, क्योंकि वो मिस्र के साथ मिल के चले, क्योंकि उन्होंने मिस्रियों के साथ चलने की कोशिश की। 32 से 34 अध्याय के बीच में हम यहूदा के ऊपर में परमेश्वर की एक शांति को देखते हैं और उसके भविष्य की महिमा को देखते हैं। और 35 अध्याय में हम परमेश्वर की महिमा को सिय्योन के भविष्य के रूप में देखते हैं, परंतु हमें नहीं पता कि वो सिय्योन का भविष्य अभी होगा या हज़ारों साल बाद होगा, परंतु परमेश्वर की महिमा को हम सिय्योन में उसके भविष्य के में आने के लिए देखते हैं। So 36 to 39, we find the history. So we find in chapter 36 the threat of Assyrians against Judah, and chapter 37 Hezekiah's prayer and God's answer, and how God crushed the Assyrian king into death, and chapter 38 announcement of Hezekiah's death and Hezekiah's prayer and God's answer, and chapter 39 the king of Babylon's beautiful letter of get well soon card, and then Hezekiah's respond and God's warnings and judgments through Isaiah. We find all these things from chapter 36 to 39. और 5वें भाग में 36 से लेकर 39 अध्याय के बीच में हम इन घटनाओं को देखते हैं जो इतिहास है। 36 अध्याय में हम देखते हैं यहूदा के ऊपर में असीरियों का जो आक्रमण था, उसके ऊपर उसकी घटनाओं को देखते हैं। और 37 चैप्टर में 37 अध्याय में हम हिजकिय्याह की प्रार्थना और परमेश्वर के उत्तर को देखते हैं, और अश्शूरियों के राजा की मृत्यु को देखते हैं। 38 अध्याय में हम ये हिजकिय्याह राजा की मृत्यु की जो भविष्यवाणी थी, जो यशायाह ने की थी, उसको देखते हैं, और हिजकिय्याह की प्रार्थना और परमेश्वर ने जो उसे उत्तर दिया उसको देखते हैं। और 39 अध्याय में जो बेबीलोन का जो राजा था, उन्होंने जो जल्दी से ठीक होने के लिए जो शुभकामनाएं यशायाह को हिजकिय्याह राजा को दी थी, उसके प्रति हिजकिय्याह की जो प्रतिक्रिया थी और परमेश्वर की जो चेतावनी थी और उसके न्याय को हम यशायाह की पुस्तक में देखते हैं। And chapter 40 to 48, we find the call of Cyrus, comfort to all returned captivities, warning to idolaters, the glory of God among God's people in the future, God's greatness in fulfilling his promises. This is the comfort to the returned captives, chapter 40 to 48. और दूसरे भाग में 40 से 66 अध्याय के जो हमने 3 भागों में बांटा था, उसके पहले भाग को हमने बांटा है 40 से 48 अध्याय के बीच में। वहाँ पर हम जो गुलामी में गए हुए लोग थे, उनके वापसी को और उन्हें मिले हुए विश्राम को हम देखते हैं। और यहाँ हम देखते हैं जो साइरस को जो परमेश्वर ने फिर से पुकारा था उसके बारे में, और जितने भी गुलामी में लोग थे, उनके वापसी और उनके विश्राम को हम देखते हैं।
साथ ही जितने जो मूर्ति पूजक थे उनके लिए चेतावनी को देखते हैं, और जो परमेश्वर के जो लोग हैं उनके भविष्य में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी उसको देखते हैं, और साथ ही परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा थी उसके पूरे होने को और परमेश्वर की महानता को हम देखते हैं। And then the second part, 49 to 55, the persecuted servant of God, we find 49 to 52, the introduction of the Messiah as God's servant and the glory of God among God's people in the future. Chapter 53, description of crucifixion of Messiah, the servant of God. 54 and 55, God's blessings which God's people will experience in future. और दूसरे भाग में 49 अध्याय से लेकर 55 अध्याय के बीच में हम परमेश्वर के सेवक के ऊपर आए हुए सताव के रूप में हम इसे देखते हैं। 49 से लेकर 52 अध्याय के बीच में हम मसीहा के परिचय को देखते हैं, एक परमेश्वर के सेवक के रूप में, और परमेश्वर की महिमा को देखते हैं परमेश्वर के लोगों के बीच में जो भविष्य में आने वाली है। और साथ ही हम मसीहा के क्रूसिफिकेशन यानी क्रूस पर क्रूसीकरण की होने वाली घटनाओं के वर्णन को देखते हैं परमेश्वर के सेवक के रूप में। और 54 अध्याय से लेकर 55 अध्याय के बीच में परमेश्वर की आशीष को हम देखते हैं जो उन्होंने परमेश्वर के लोगों के लिए रखी है और भविष्य में उनके अनुभव के लिए रखी हुई है। Finally, the last part, 56 to 66, we find God's eternal kingdom's rule, whereas 56 to 59, we find God's blessings to the obedient, God's warning to the disobedient, and 60 to 66, the glory of God which God's people will experience in future. और तीसरे भाग में हम 55 से लेकर 66 अध्याय को देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर की जो अनंत जो राष्ट्र है शासन उससे आते हुए हम देखते हैं। इसको हमने दो भाग में बांटा है। 56 अध्याय से लेकर 59 अध्याय के बीच में हम परमेश्वर की आशीष को देखते हैं आज्ञाकारी लोगों के ऊपर, और परमेश्वर की चेतावनी को देखते हैं अनाज्ञाकारी लोगों के ऊपर। और 60 से लेकर 66 अध्याय के बीच में हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो वे भविष्य में अनुभव करने वाले हैं। So there are many texts of the book of Isaiah is referred in the New Testament. I have given you a catalog here, and you'll be able to understand them. I'm not going to say all each and every one of it. And left side I have portrayed OT, and the right side where it is referred in the New Testament, and is almost like few are promises fulfilled in the New Testament, and a few are used in different format, not necessarily a prophecy. There are different formats of fulfillment of OT in the New Testament. और पुराने नियम में जो यशायाह की पुस्तक है उसके नए नियम में जो रेफरेंस है उसको हम यहाँ चार्ट के रूप में देख रहे हैं। या तो वो भविष्यवाणी पूरी होते हुए या फिर उसके पूर्तिकरण के रूप में उसके वचनों को हम साथ में मिलकर यहाँ पर हम उसके एक क्रम में अध्ययन कर सकते हैं। So with this we have concluded the book of Isaiah. तो इस प्रकार हमने यशायाह की पुस्तक को संक्षिप्त रूप में अध्ययन किया है। Hope God has blessed us as we studied in this book of Isaiah. हम आशा करते हैं कि इस तरीके से परमेश्वर ने इस यशायाह की पुस्तक को पढ़ने के लिए हमें आशीषित किया होगा। Let us pray and let us close our eyes and let us submit ourselves to the Lord so that we may what little we understood and we will inculcate in our personal and practical life. आइए हम प्रार्थना करें ताकि जो कुछ हमने सीखा है उसको हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में ला सके और परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो सके।